Hello bachcha log, welcome to the channel EduZone Learning Solution. So today we are going to start chapter number 10 of chemistry, that is halogen derivative. Okay, alright. So we had covered in our last video that the chapter number 9 is already complete, so it has been uploaded and you can watch our full coordination compound. Okay, so before that we had completed the elements of group 16, 17 and 18, so almost the series of that chapters has been completed and already been uploaded. So if you are new to our channel, if you are visiting for the first time, so I would like to request you to for surely make sure to subscribe our channel if you are seeing this for the first time, and if you are regular through our video, so what you have to do is at the last after watching the full this video, you have to do comment and tell me that how was the quality of the video and what else you required, if any extra suggestion from your side or any extra demand from your side to cover the topic. It is almost welcome from my side. Okay, so let's get started. So ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. So देखो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो जो भी चीज़ हम लोग डील करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपका. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए. सो वी हैड गॉन थ्रू दिस ऑल्सो. सो वी नो अबाउट टाइप ऑफ द आइसोमरिज्म, सो वी हैड लर्न दैट ऑल्सो. सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट अवेयर अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, right? So arrangement of atom, so that is again important point. So arrangement of atom, I can simply write arrangement over here, and the IUPAC nomenclature. So you know generally how we name the element, and with the rule of IUPAC naming nomenclature, how we basically write. So just look at this and just revise once again. So like this is the example, यहाँ पे आप example देख रहे हो benzyl bromide का. So we know, right, यहाँ पे क्या है, benzyl, benzene, structure of benzene, you can relate with that. What is benzene over here? So what it is exactly, it is benzyl bromide. The structure is benzyl bromide, right? So you have to identify just over here what is the structure over here, what this is known as. This is called as freon 12. Freon 12. Just revise once again so that you can recall all the stuff. This is Vestrosol. Okay, so remember the structure ClCH2, ClCH2. Okay, so there are 2 carbons, 2 and total 3 chlorines. Okay, so C2HCl3. Remember the molecular formula of this, C2HCl3. Okay, now this is hexachlorobenzene. Why hexachloro? Because we have 6 chlorine, so that's why hexachloro, and the structure is benzene. So hexachlorobenzene. This is hexachlorocyclohexane. This is not benzene. Why? We know the structure of benzene, how we create that. So this is the structure of benzene, but if it is not there in the diagram, if it is not present in the structure, so what we will call this as this, so we will call this as hexachloro. Why? Because we have 6 chlorine, so that's why hexachlorohexane, hexachlorocyclohexane. Okay, चलो आगे बढ़े. ओके, सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव. देखो क्लासिफिकेशन, हमने सुना है अल्केन, हमने सुना है अल्कीन, हमने सुना है अल्काइंस, अरीन्स. ठीक है, सो आपको पता है अल्केन क्या है, अल्कीन क्या, डबल बॉन्ड माने अल्कीन हो गया, 3 बॉन्ड लग गया अल्काइन हो गया. ठीक है, सो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 2 ways. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, ओके, टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड. हेलोजन यार, हेलोजन एटम आपका, हेलोजन एटम यानी क्या, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये चीज़ याद है आपको. हेलोजन एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, कोई भी आपका एलिमेंट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, हेलो अल्केन माने सिंगल बॉन्ड है, पूरा स्ट्रक्चर आपका. अल्केन माने कहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, हेलो अल्केन है. ठीक है, हेलो अल्कीन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या होगा वो, यू विल कॉल दैट एज हेलो अल्कीन. ओके, सो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यू विल ईजिली बी एबल टू रिलेट, राइट. सो इफ आई एम क्रिएटिंग, वी नो दैट
carbon has 4 bonds, so we have over here CH2. okay, so we have CH, we can write over here CH like this, and if I am having only one carbon, then I have to make sure while writing with the double bond. okay, so CH2 CHX, ठीक है. so यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए अगर इसके पॉइंट पे बात करूँ तो डबल बॉन्ड 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, चौथा हाइड्रोजन हो गया, सेटिस्फाई हो गया, 4 बॉन्ड बना दिया इसने. यहाँ पे देखो 3 H है, एक बॉन्ड है, ये भी सेटिस्फाई हो गया कार्बन, ये भी सेटिस्फाई हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 2 अलग अलग बॉन्ड है, एक CH3 के साथ, दूसरा X के साथ. हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन और हेलो अल्काइन. अब ये हेलो अरीन. अरीन यानी क्या? बेंजीन के फॉर्मेट में जो भी आपका होगा, जिसमें भी हम लोग डील करेंगे, वो अरीन के फॉर्मेट में हो गया. ठीक है, चलो. Second, then what is the next part? If we know that we can classify this first in the form of halo, alkane, alkene, alkyne and arenes, then what is the next part? On the basis of number of halogen atoms. So second is on the basis of number of halogen atoms, halogen derivatives are classified as mono, di, tri, poly halogen compound. Mono माने एक, di माने दो, poly माने multiple and numbers. ठीक है, so tri माने 3. उस तरीके से mono halogen compound. अगर इसको क्लासिफिकेशन करना हो तो ये एक है तो क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे. ये 2 है तो क्या बोलेंगे? डाई हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे. स्ट्रक्चर कोई भी होने दो, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आपको पूछा है डाई हेलोजन कंपाउंड का एग्जांपल दो, तो अपनी मर्जी से बना लो कुछ भी, बस इतना ध्यान रखना उसमें 2 हेलोजन होना चाहिए. डाई हेलोजन बोला है, सिंपली कॉमन सेंस है, 2 हेलोजन डाल दो, अटैच करो, ध्यान से उसका देखो बॉन्डिंग बराबर बना है कि नहीं, बैलेंस्ड है या नहीं, वो ही चेक करना. दैट्स इट. मोनो हेलोजन माने एक हेलोजन अटैच होगा. ट्राई हेलोजन माने 3 हो गया अटैच. यहाँ पे ट्राई हेलोजन कंपाउंड में ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है, 3 ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, सो वी विल कंसिडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स इन मोर डिटेल ऑनवर्ड्स. ओके, देखो डिटेल में देखते. 1 डिग्री हेलाइड है, 2 डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड है. देख के ही समझ में आ जाना चाहिए 1 डिग्री क्या है. ये देखो, ये 1 डिग्री क्यों है? यहाँ पे मेरे पास एक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे R माने मिथाइल ग्रुप होगा यार, कोई भी ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप बोल लो. ठीक है, R माने कितने भी आगे उसके नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड है. हमें किससे लेना देना है? CH2 और X से. प्राइमरी हेलाइड किसको बोलेंगे? 1 डिग्री हेलाइड को बोलेंगे. किसको बोलेंगे? 1 डिग्री हेलाइड को बोलेंगे, प्राइमरी हेलाइड. सेकेंडरी हेलाइड, यहाँ पे देखो सेकेंडरी हेलाइड क्यों? क्योंकि मान लो ये लीनियर है और यहाँ पे एक हेलोजन अटैच हो गया तो 1 डिग्री हेलाइड है. ये लीनियर है लेकिन यहाँ पे दूसरा मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे आपका. ठीक है, हेलोजन का कोई भी एक एलिमेंट अटैच हो गया तो ये सेकेंडरी हेलाइड हो गया यहाँ पे. अभी देखो इसके पास पहले से ही 3 है. ये वाला अगर मैं बात करूँ कार्बन, तो इसके पास पहले से ही 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है. राइट, 3 अल्काइल ग्रुप पहले से ही अटैच है ना, तो ये 3 डिग्री हेलाइड हुआ. इसके अभी मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ. once again we will do the revision. So you can see I am having, if I am considering this as my central carbon atom, so I have to look over all the sides of that, right? So in the left hand side I can see that I am having only one alkyl group, right? Only one alkyl group. It means I am having this as 1 degree halide. I am having over here 2 alkyl group, R, right? So this is 2 alkyl group, so 2 degree halide. I am having in the third case, which is 3 alkyl group. Over here it is present 3 alkyl group, so we can write this as 3 degree halide. Okay, clear? Chalo, allylic halides. Now what is allylic halides? In allylic halides, halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon-carbon double bond. Remember this allylic, it is right, what it is mentioned, it is allylic. It means sp3 hybridized, where the double bond is present. So in this case we will mention this as allylic halides, right? If it is sp3 hybridized carbon atom next to the carbon-carbon double bond, remember what it is written, next to the carbon-carbon double bond, right? So in this case we will call this as allylic halides. अभी benzylic halide क्या होगा इस केस में? benzylic halides, halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is further bonded to an aromatic ring. aromatic ring बन जाएगा आगे चल के वो. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे अटैच कर दूँ तो हाइड्रोजन निकल जाएगा CH3. ठीक है, तो इसको कि इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजाइलिक हैलाइड. इसके आगे बहुत भी एग्जांपल है, समझ जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. फिलहाल अल्केन, अल्किन, अल्काइन समझ लिया.
sp3 हाइब्रिडाइजेशन पता है, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड पता है तो हो जाएगा। अभी विनाइलिक हैलाइड क्या हो गया, विनाइलिक माने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम रहेगा तो विनाइलिक बोलेंगे, sp3 रहेगा बेंजाइलिक बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। इन विनाइलिक हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, सी हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, आपके पास कार्बन के पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो इट इज़ हेलो अल्कीन, इट इज़ हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ओके, ऑल क्लियर। हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो व्हेन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइज पता है आपको, डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज, सिंगल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइज, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन से अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। इतना बेसिक्स आपको पता है। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम इज अटैच्ड टू हेलो अल्काइन। अभी देखो एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और हेलो अरेन्स। हेलो अरेन देखा क्या है पता है। ठीक है, इन एराइल हैलाइड हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पे ये जो हैलाइड है आपका कार्बन से अटैच नहीं है, ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका बेंजीन है या फिर आपका जो भी मतलब यहाँ पे बेंजीन जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी से अगर अटैच्ड है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलेंगे या फिर इसको हेलो अरेन्स बोलेंगे। ओके, क्लियर। डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बाकी मुझे तो लगता है कोई डाउट होना चाहिए नहीं, बहुत इजी है। ओके, नेम ऑफ सम हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, CH2Cl2 मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, मिथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मिथिलीन क्लोराइड, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे किस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे इसका, CH2H दो बाजू में लग जाएगा, Cl उसके दो बाजू में लग जाएगा, यानी ये मिथिलीन क्या है, ये मिथिलीन क्लोराइड है। आईयूपैक नेमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम मिथिलीन क्लोराइड है, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल CH3CH2Br कितना है, दो मेरे पास कार्बन है, दो कार्बन है मतलब इथेन हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, मीथेन हो गया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी इथेन हो गया, इथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। आईयूपैक ब्रोमोइथेन। ठीक है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में पहले आप लोग क्या ले लोगे, कार्बन से अटैच जो भी एलिमेंट है उसका नाम लिखोगे ब्रोमो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से। ठीक है, CH3 CH2। ठीक है, प्रोपेन है यहाँ पे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, सॉरी CH2 है, ध्यान देना, फंस मत जाना, ब्यूटेन है। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो ये CH3 ट्वाइस दिया हुआ है, C पे अटैच्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखेंगे, इसको लिखेंगे मैं यहाँ पे पहले इसको देखा, अभी इसको देख रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद ही। चलो इसको देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मैं गलती से दूसरा ना देख लूँ। क्या है, CH3 CHCl CH3 है, 3 कार्बन आइटम है, माने प्रोपाइल है, क्लोराइड अटैच है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे या बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। सेकंड पोजीशन पे है, कार्बन के सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है। ठीक है, अभी यहाँ वाले पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, CH3 है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे या तो फिर इसको प्रोपेन बोलेंगे। क्यों प्रोपेन बोलेंगे इसको, अभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन यहाँ पे अटैच्ड है एक कार्बन पे, तो किस तरीके, कॉमन नेम क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल हुआ। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ, क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ। आईयूपैक नेम क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे जो नियरेस्ट पोजीशन है, सो रूल के हिसाब से 1 ब्रोमो लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे। ओके, समझ में आया, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे। चलो अभी देखो यहाँ पे 3 है तो टर्ड ब्यूटाइल हो गया ये भाई, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ ये वाले केस में। ओके, इसका आईयूपैक कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसको आप स्ट्रक्चरल है, सॉरी मॉलिक्यूलर है, स्ट्रक्चरल इसको बनाना पड़ेगा। अभी देखो नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 5 कार्बन है, क्लियर हुआ। नियोपेंटाइल
अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो हर एक एंगल पे अटैच्ड है कार्बन इसका, ठीक है। सो नियोपेंटाइल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 1, देखो किस तरीके से लिखा है 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल 2,2 डाईमिथाइल, मतलब ये सेकंड कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो डाईमिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से ये क्या हो गया, ये विनाइल हो गया आपका, ये विनाइल क्लोराइड हो गया, 1 क्लोरोइथेन बोलेंगे इसको। ये आपका क्या हुआ, ये अलाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ये अलाइल ब्रोमाइड हुआ आपका, ठीक है। आप इसको 3 ब्रोमोप्रोपिन बोल सकते हो। ये कॉमन नेमिंग में इसको क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl को क्लोरो एसिटिलीन बोलेंगे, क्लोरो एसिटिलीन बोलेंगे, इसको क्लोरो इथाइन बोलेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, क्लोरो इथाइन बोलेंगे IUPAC में। ये क्या हुआ आपका, बेंजाइल आयोडाइड हुआ, बेंजाइल आयोडाइड, IL CH2 लगा हुआ है। ये क्या हुआ, आयोडो, आयोडो लिखेंगे, आयोडो फिनाइल मीथेन, आयोडो फिनाइल, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, आयोडो फिनाइल। फिनाइल की बॉटल देखोगे कभी आप तो उसमें स्ट्रक्चरल लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, उसका प्रॉपरली केमिकल देखना वहाँ पे कभी ओपन करके अगर पता चले तो, ठीक है। सो आयोडो फिनाइल मीथेन। ये क्या है, आयोडोटोल्यूइन, आयोडोटोल्यूइन आई अटैच्ड है, ठीक है, टोल्यूइन बोलेंगे क्योंकि ये CH3 के साथ अटैच नहीं है, बेंजीन एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, तो टोल्यूइन बोलेंगे, ठीक है। IUPAC नेम कैसे है, 1 आयोडो, फर्स्ट आयोडो को कभी भी यहाँ पे स्टार्टिंग देखो नंबरिंग कैसे करना है, मीथेन को लेके नहीं करोगे, ठीक है। जहाँ पे आपके हेलोजन है ना तो उसके रिस्पेक्ट में करोगे, हेलोजन के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करोगे, याद रखना, याद रखने वाली चीज़ है। 1 आयोडो, हाउ मेनी आयोडो, 1 आयोडो, 4 मिथाइल, 4 पोजीशन पे काउंट कर लो जहाँ से नज़दीक है, 4 मिथाइल बेंजीन और 4 आयोडो टोल्यूइन, 4 आयोडो टोल्यूइन बोल सकते हो। अगर इसको टोल्यूइन पकड़ना है तो टोल्यूइन पकड़ लो, स्ट्रक्चर क्या होगा 1 2 3 4, 4 आयोडो टोल्यूइन। अब ये देखो M डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, डाइक्लोरो है M डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे इसको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, अगर ऐसा प्रैक्टिस करने को मिले, जितना मिले उतना प्रैक्टिस कर लो, अच्छा होगा आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलो, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड, सिंपल, हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड बोला है आपको, क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, ROH लिया, यहाँ पे हमने HX लगाना है। अभी ये क्या होगा, रिप्लेस किससे होगा, हैलाइड के साथ आपका रिप्लेस हो जाएगा, आपका वाटर बन के अलग हो जाएगा। ग्रूव्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl, अभी मान ले यहाँ पे क्लोरीन की अगर हम बात करें, अगर हमने एक हेलोजन ले लिया एलिमेंट, आपके हेलोजन जो भी ग्रुप है उसमें से, सो इसको क्या बोलेंगे, ग्रूव प्रोसेस बोलेंगे अगर HCl के साथ अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो RCl क्या मिलेगा, RCl H2O मिलेगा, ध्यान रखना, सिंपल है। अब ये देखो यहाँ पे ROH HBr दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हाइड्रोब्रोमिक एसिड का 48% इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अल्काइल ब्रोमाइड, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन विथ NaBr के साथ भी आप कर सकते हो, एंड H2SO4, ठीक है। NaBr और H2SO4 के साथ भी आप इसको कर सकते हो, ये देखो हीट देके RBrH2O बनेगा, ठीक है। जनरेटेड इन C2 ये दिया हुआ है, ये भी देखो जनरेटेड इन C2 की बात की है, यानी NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, यानी क्या करना है आपको, हाइड्रोजन आयोडो जो भी आपको दिया है HI, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी आप कर सकते हो, फॉस्फोरस के साथ भी आप कर सकते हो, ROH दिया हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे, गुड यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड बोलेंगे, मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड, रिप्लेस होगा, H2O बन जाएगा, बाहर आ जाएगा RI, ठीक है गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करके किस तरीके से रिएक्शन होता है आपका, ठीक है। सो जैसे कि अभी जस्ट एक और बार आपको दिखा देता हूँ, ROH को क्या किया हमने, HX के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, इन अ सूटेबल कंडीशन। सो देखो ये जो आप एरो में देख रहे हो ना, जो कुछ लिखा हुआ आता है, कभी कोई रिएजेंट आ जाता है, ठीक है, कभी कोई एक्वस सोल्यूशन आ जाता है, लिक्विड गैस या कुछ भी, तो वो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सूटेबल कंडीशन की, तो टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर रिएक्शन जब टेक प्लेस हो रहा होता है तभी की बात हो रही है। सो रिप्लेस होगा, सो R यहाँ पे जो भी अल्काइल या जो भी ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे तो ये अल्काइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा और यहाँ पे अटैचमेंट होगा यहाँ पे X के साथ जो कि हैलाइड है और वाटर मॉलिक्यूल, ओके। सो सेम यहाँ पे ग्रुप प्रोसेस में होगा हमारे पास
अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस केस में क्या होगा, 48% आपको बोला है, ठीक है। 48% इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड, तो क्या होगा, HBr के साथ रिप्लेस करवाएंगे तो RBr प्लस H2O, ठीक है। सो यहाँ पे गुड यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% फॉस्फोरिक एसिड, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये H3PO4, सो यहाँ पे क्या होगा, इसके प्रेजेंस में आप करोगे तभी वो रिएक्शन लगेगा। सो HI इज जनरेटेड इन C2 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH को रिप्लेस किया जा रहा है RI के साथ, यानी OH जो है यहाँ पे जा रहा है, H का वाटर मॉलिक्यूल बन जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े। ओके, सो देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, R3ROHPX3 दिया हुआ है, जो कि मेरे पास यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो हैलाइड ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ, तो PX3 है। और अगर हम क्लोरीन इस केस में तो अगर मैं PX3 लेता हूँ कोई भी एलिमेंट चाहे वो उस चीज़ का, तो 3R तो क्या बनेगा, मुझे ये H3PO3 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे, H3PO3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 की बात कर रहे हैं। अगर इसको रिएक्ट करवा दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, अल्कोहल के साथ, रिएक्ट विद अल्कोहल ROH जो भी है आपका, सो यहाँ पे क्या देगा वो, RCl देगा, एक HCl देगा, दूसरा क्या देगा, POCl3 देगा, ठीक है, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। अभी थायोनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो थायोनाइल क्लोराइड में देखो क्या होता है, रिएक्ट विद द स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल्स, देखो ये हुआ स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल, टू गिव अनरीअरेंज्ड अल्काइल क्लोराइड, यानी अनरीअरेंज्ड आपको अल्काइल क्लोराइड देगा यहाँ पे। द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर गैसेस, तो ये जो अपर एरो आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है बल्कि गैसेस है। देयर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट सेपरेशन, मतलब आपको कोई भी अलग से एक्सटर्नल रिएजेंट की हेल्प से इसको सेपरेट नहीं करवाना है। सो देखो ये केसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी आपको रिएजेंट, एक्सटर्नल रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, कभी कोई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वो कभी आपको प्रैक्टिस होगा हैंड रिटन प्रैक्टिस, केमिकल इक्वेशन को हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसका प्रॉपर टॉपिक दो, उसको एक प्रॉपर हेडिंग नेम के साथ करो। देयरफॉर दिस मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। चलो यस, तो यहाँ पे देखते हैं अभी, हाउ विल यू ऑब्टेन, अभी पूछा जा रहा है आप ऑब्टेन कैसे करोगे 1-bromo-1-methyl cyclohexane। देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन 1-bromo, ये बोल रहा है 1-bromo-1-methyl cyclohexane, ये पूछा आपको साइक्लोहेक्सेन, ये कैसे बनाओगे फ्रॉम अल्कीन। अभी आपको बोल दिया अल्कीन से आप ये कैसे बनाओगे, तो राइट पॉसिबल, आपको बोल दिया पॉसिबल वे लिखो आप, राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो कितने भी आपके हो सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी अभी ब्रोमो बोल दिया आपको, यहाँ पे क्या बोल दिया 1-bromo, मतलब होगा आपका HBr तो आना ही आना है, इतना क्लियर हुआ। अभी आपको क्या बोल रहा है 1-bromo-1-methyl cyclohexane चाहिए, 1 मिथाइल चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेंजीन पे कोई ना कोई एक तो अटैच होना चाहिए कार्बन, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया, दो तरीका है, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है डबल बॉन्ड, हाँ मतलब अरीन के अंदर ही आपका जो है डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे ये वाले कार्बन पे, सेंट्रल कार्बन पे, या तो फिर क्या होगा यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन जो रहेगा आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो है ये वाले मीथेन के साथ जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। सो ये एक तरीका होता है लिखने का। सो अगर आपको पूछा किस तरीके से लिखना है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आप गो थ्रू कर सकते हो, तो उसके मल्टीपल वेरियस मेथड्स होते हैं। सो क्या क्या देखा हमने, एक और बार देख लेते हैं सारा कुछ, तो ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, ओके, बेसिक्स हमने यहाँ पे देखा था, नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से होता है, विनाइल क्लोराइड वगैरह उस तरीके से एक्सेप्शन केस भी देखे थे हमने, ठीक है। सो अल्काइल, अल्केन, अल्कीन, ठीक है, हेलो अल्कीन वगैरह वो सारी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, अराइल हैलाइड, हेलो अरीन्स, यहाँ पे आईयूपैक नेमिंग वगैरह देखा था, ओके। हेलोजन एसिड, यहाँ पे रिएक्शन देखा था बाय यूजिंग हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड के थ्रू किस तरीके से रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, और ये लास्ट का एग्जांपल। सो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया आपको तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लो पहले तो चैनल को, अगर अभी तक किया नहीं है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट अच्छा तो लगा तो लाइक कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मुझे पूछ सकते हो, मेरी ID मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, _केवल छेड़ा आप लिख दीजिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। चलो ओके, गाइस, थैंक यू, बाय बाय।